ہندوستان کا کوئی بارڈر نہیں ہے افغانستان کے ساتھ، اور ہم نے دیکھا کہ پچھلی حکومت میں ہندوستان نے بہت زیادہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا، اور اس وقت بھی ایک ہم ایفرٹ دیکھ رہے ہیں جو ہندوستان کے میڈیا کے اوپر ہمیں نظر آ رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ ایفرٹ جو ہے ہندوستان اس معاملات سے پرے رہے۔ وفاقی کابینہ کا بھارت پر افغانستان میں مداخلت سے باز رہنے پر زور۔ پاکستان امن کا شراکت دار ہے، دنیا افغانستان میں امن کی کوششوں میں حصہ ڈالے۔ مختلف ممالک کے شہریوں کو افغانستان سے نکالنے میں مدد فراہم کی۔ وزیر خارجہ کی افغانستان میں حکومت سازی کے عمل سے متعلق پاکستان کے کردار کے بارے میں بریفنگ دی۔ جہاں فوج اور ادارے مضبوط نہیں ہیں وہ ملک نہیں چل سکتے۔ جتنا عزیز آپ کو اپنا گھر ہے اتنا ہی عزیز وطن ہونا چاہیے۔ ملک محفوظ ہوگا تو گھر محفوظ ہوگا۔ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، جہاں ریاست محفوظ نہیں وہاں گھر بھی محفوظ نہیں۔ کابینہ اجلاس کے بعد وزیر اطلاع چودھری فواد حسین کی میڈیا بریفنگ۔ افغان سرزمین کسی صورت پڑوسیوں کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکہ 31 اگست تک فوجیوں کا انخلاء مکمل کرے۔ جلد قومی فوج کی تشکیل نو مکمل کر لیں گے۔ شہری ملک چھوڑنے کے بجائے افغانستان کی ترقی کے لیے کردار ادا کریں۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کی نیوز بریفنگ۔ افغانستان میں معمولات زندگی بڑی حد تک بحال۔ حالیہ دنوں میں کابل سمیت ملک بھر میں تشدد کا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا۔ ہسپتال، کاروباری مراکز، بینکس اور تعلیمی ادارے کھلے ہیں۔ سرکاری ٹی وی اور ریڈیو کی نشریات جاری ہیں۔ سیکیورٹی بحال ہونے پر ملازمت پیشہ خواتین اپنے اداروں میں جانے کے لیے آزاد ہوں گی۔ مزید خانہ جنگی نہیں چاہتے۔ پنشیر کا معاملہ بھی گفت و شنید کے ساتھ حل کر لیا جائے گا۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد۔ امریکی CIA کے سربراہ ولیمز برنز کی کابل میں ملا عبدالغنی برادر سے اہم ملاقات۔ طالبان کے انتباہ کے بعد اتحادی ممالک نے انخلاء کا عمل تیز کر دیا۔ توسیع کے لیے G7 کا اہم ورچوئل اجلاس آج ہو رہا ہے۔ طالبان سے مزید چند روز کی مہلت لینے کی کوشش کی جائے گی۔ طالبان نے بعض وزارتوں اور اہم اداروں میں عبوری تقرریوں کا اعلان کر دیا۔ مودی حکومت کا غریب الوطن افغانیوں کو سہارا دینے سے انکار۔ عالمی برادری سے افغانوں کو پناہ کے بدلے ڈالرز کی بھیک مانگی۔ لوٹے پوٹے افغانیوں کا نئی دلی میں احتجاجی مظاہرہ۔ صرف ان کو پناہ دیں گے جو افغانستان میں ہمارے لیے جاسوسی کرتے رہے۔ مودی حکومت کا جواب۔ بینک بند تھے، بینک بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اب وہ یہاں پر کھڑے ہیں ATM کی لائنوں میں کہ پیسے نکال سکیں اور اپنا نظام زندگی چلا سکیں۔ مرکزی بینک میں گورنر کی تعیناتی کے بعد افغانستان میں مالیاتی سرگرمیاں بحال۔ بینک اور مالیاتی ادارے کھل گئے۔ ATM مشینوں سے رقم کی بآسانی حصول ممکن۔ PTV نیوز کے نمائندے فہد جاوید کی کابل میں بینکوں کے باہر کھڑے لوگوں سے بات چیت۔ نئے دور کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خود کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ نوجوان نسل IT کے شعبے میں صلاحیتیں بروئے کار لائے۔ معاشی ترقی کے لیے دیگر صنعتوں کے ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا عالمی ورچوئل کانفرنس سے خطاب۔ شہباز شریف نیب راولپنڈی پیش نہ ہوئے۔ عطا اللہ تارڑ نے جواب جمع کرایا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو احسن اقبال کے بھائی مصطفیٰ کمال کو میٹرو بس منصوبے میں خلاف ضابطہ ٹھیکہ دینے پر طلب کیا گیا تھا۔ مسلم لیگ نون میں پھوٹ۔ مفتاح اسماعیل جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون سندھ کے عہدے سے مستعفی۔ میرے خلاف پروپیگنڈے کو سوشل میڈیا پر اچھالا گیا۔ کراچی میں ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی گئی۔ عہدے پر رہنا ممکن نہیں، مفتاح اسماعیل۔
पाकिस्तान का गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का कामयाब तजुर्बा। रवायती हथियार ले जाने वाला मुकामी तौर पर तैयार करदा रॉकेट सिस्टम दुश्मन के इलाके में गहराई तक अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। DGISPR। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत। ताज़ा कार्रवाई के दौरान सोपूर में मजीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। मोदी हुकूमत की तरफ से वहशत और दरिंदगी की ताज़ा लहर से सूरत हाल मामूल के मुताबिक होने का दावा बेनकाब। कश्मीरी अवाम भारतीय तसल्लुत से निजात के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दे रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। सीरीज बराबर होगी या वेस्ट इंडीज जीतेगा? जमैका क्रिकेट टेस्ट फैसला कुन मराहिल में दाखिल। के हदफ की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। स्पोर्ट्स पर बराह looking stroke from he's gone for it. और न्यूजीलैंड और इंग्लिश क्रिकेट टीमों का दौरा पाकिस्तान। बोर्ड्स के सिक्योरिटी माहिरीन का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा। डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट PCB जाकिर खान की वफ्द को ब्रीफिंग। आइंदा माह खेले जाने वाले मैचेस के इंतजामात के हवाले से तबादला ख्याल। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अली जन्नत। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। पाकिस्तान इस वक्त कोरोना की चौथी लहर की लपेट में है। हर नई लहर पिछली से ज्यादा शदीद साबित हो रही है। बार बार के लॉकडाउन, रोज रोज की माली मुश्किलात, ये सिलसिला कब और कैसे खत्म होगा? इन सब सवालों का जवाब है वैक्सीन। सिर्फ वैक्सीन के जरिए हम इस सिलसिले को खत्म कर सकते हैं, जिंदगी को मामूल पर वापस ला सकते हैं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपके इलाके में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन आए तो उनसे वैक्सीन लगवाएं या करीबी वैक्सीनेशन सेंटर तशरीफ लाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। पाकिस्तान इस वक्त कोरोना की चौथी लहर की लपेट में है। हर नई लहर पिछली से ज्यादा शदीद साबित हो रही है। बार बार के लॉकडाउन, रोज रोज की माली मुश्किलात, ये सिलसिला कब और कैसे खत्म होगा? इन सब सवालों का जवाब है वैक्सीन। सिर्फ वैक्सीन के जरिए हम इस सिलसिले को खत्म कर सकते हैं, जिंदगी को मामूल पर वापस ला सकते हैं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपके इलाके में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन आए तो उनसे वैक्सीन लगवाएं या करीबी वैक्सीनेशन सेंटर तशरीफ लाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं।
नाज़रीन, खबरनामे के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने भारत पर जोर दिया है कि वो अफगानिस्तान में मुदाखलत से बाज रहे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन की बहाली का शराकतदार है और हम चाहते हैं कि आलमी बरादरी भी अमन कोशिशों में हिस्सा डाले। काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग में वज़ीर इत्तलात ने यह वाज़ेह किया कि जहां फौज नहीं और इदारे मजबूत नहीं वो मुल्क नहीं चल सकते। तफसील बताएंगे मोहम्मद नवीद अजहर। विफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने काबीना को ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में हुकूमत साजी के अमल में जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला के अमल में भी पाकिस्तान ने भरपूर मुआवनत की है, जिसे आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। काबीना इजलास में बताया गया कि माजी की हुकूमत में भारत ने अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया और अब भी मीडिया के जरिए भारत अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाना चाहता है। काबीना में हमने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर मुदाखलत से बाज रहे। हिंदुस्तान का कोई बॉर्डर नहीं है अफ़गानिस्तान के साथ, और हमने देखा कि पिछली हुकूमत में हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। और इस वक्त भी एक हम एफ़र्ट देख रहे हैं जो हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर हमें नज़र आ रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमन का एक प्रोसेस है, अमन का जो एक अमल है, उसको सबटाज किया जाए। हिंदुस्तान की तरफ से एक मुसलसल ये एफ़र्ट आ रही है और हम ये समझते हैं कि इसको ये एफ़र्ट जो है हिंदुस्तान इस मामलात से परे रहे। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि मजबूत फौज और इदारों से ही मुल्क मजबूत होते हैं। जहाँ पे फौज नहीं है और वहाँ पे जहाँ पे आपकी इदारे मजबूत नहीं होते तो फिर मुल्क नहीं इस तरह से चल सकते। जितना आपको अपना घर अजीज़ है उतना मुल्क अजीज़ होना चाहिए। अगर मुल्क होगा, मुल्क महफूज होगा तो घर महफूज होगा। विफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज और मशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने पर पेशरफ से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। विफाकी काबीना ने इस अज़्म का इयादा किया कि अवाम की हमायत से इलेक्शन को शफाफ, गैर जानिबदार और काबिल एतमाद बनाने के हवाले से टेक्नोलॉजी पर मबनी नए निज़ाम को सबूताज करने की तमाम कोशिशों का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल इलेक्शन में शफाफियत के हवाले से कायम की जाने वाली जुडिशल कमीशन सिफारिशात पर मुकम्मल पूरा उतरता है। उन्होंने कहा कि ये अमल इंतखाबात में शफाफियत को यकीनी बनाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि नए निज़ाम को समझे बगैर इसकी मुखालफत वो कर रहे हैं जो इस फरसूदा निज़ाम से फायदा हासिल करते रहे। मीनार पाकिस्तान जैसे वाक़यात से मुतल्लिक़ इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये वाक़यात मुआशरे के हर तबके के लिए काबिल तशवीश हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए जिनसी जराइम और दीगर गैर अखलाकी रुझानात को रोकने के लिए मुबाहिसे की जरूरत है। इजलास में मुख्तलिफ तकर्रियों और तैनातियों की भी मंजूरी दी गई। काबीना को मुल्क में कोरोना की सूरत हाल से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग दी गई। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, IMF की जानिब से अफगानिस्तान से इनखला के हवाले से पाकिस्तान के कलीदी किरदार को दादे तहसीन पेश करते हुए शुक्रिया अदा किया गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टलिना जॉर्जेवा ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मरासला लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंतहाई मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान से IMF स्टाफ और उनके ख़ानदानों की बाहिफाजत इनखला पर दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। ख़त के मतन में कहा गया है कि वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दिफा और गवर्नर स्टेट बैंक के किरदार को भी सराहते हैं। मुश्किल वक्त में इनखला के हवाले से पाकिस्तान की जानिब से आला सतह पर की जाने वाली कोशिशें कलीदी अहमियत की हामिल हैं। खत में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान और फंड के माबैन पार्टनरशिप पर मशकूर हैं और इस ताउन के तसलसल के मुतमन्नी है। क्रिस्टलिना जॉर्जेवा ने खत में वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वह अफ़गानिस्तान की तामीर नौ और अफ़गानियों की मौशी बहाली के लिए मौसर इकदाम उठाने में अपना किरदार अदा करें। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा अमार स्पेंस से टेलीफोन पर अफ़गानिस्तान की बदलती सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ज़रूरत इस अमर की है कि अफ़गानियों की सिक्योरिटी और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। अफ़गान क़यादत की जानिब से मंजर आम पर आने वाले हालिया बयानात हौसला अफजा हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने के वसी मौक़े मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने काबुल से इनखला के अमल में मुआविनत पर वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया।
नाज़रीन, अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत-ए-हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ खित्ते के ममालिक के सामने रखने के लिए वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के दौरे पर रवाना हो गए हैं। दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारिजा अफगानिस्तान में हालिया तब्दीलियों पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह करेंगे। इसी बारे में रिपोर्ट कर रही हैं नमरा सोहेल। अफगानिस्तान की नई सूरत-ए-हाल, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुतहरिक। तालिबान के अफगानिस्तान पर कंट्रोल ने जहां दुनिया भर के ममालिक में हलचल मचा दी है, वहीं खित्ते पर भी इसके असरात इंतहाई वाज़ेह हैं। लम्हा ब लम्हा तेजी से बदलते हालात के दौरान वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के दौरे पर रवाना। वज़ीर ख़ारिजा के इस अहम दौरे का मकसद खित्ते के मुल्कों की क़ियादत के साथ अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू है। मेरी इस दौरे से मुतल्लिक चीन के वज़ीर ख़ारिजा से भी बात हो चुकी है। तो हम 6 पड़ोसी हैं जो अफ़गानिस्तान के गिर्द हम रहते हैं और हमें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से दिलचस्पी है। हम वहाँ अमन चाहते हैं, हम वहाँ इस्तेहकाम चाहते हैं। बहुत से हमारे चैलेंजेस हैं जो कॉमन नौयत के हैं। दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान समझता है कि हमसाया और खित्ते के मुल्कों के लिए अफ़गानिस्तान में अमन और सलामती और इस्तेहकाम अहम है। अफ़गानिस्तान के हालात अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं तो हम सब ही 6 के 6 जो पड़ोसी हैं उनसे फ़ायदा मंद होंगे, उससे हम मुस्तफ़ीद होंगे। खुदा न खास्ता अगर अफ़गानिस्तान के हालात बिगड़ते हैं तो और वो अदम इस्तेहकाम का शिकार होता है तो हम सब मुतासिर होंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के दौरे से आला सतह पर रवाबित मरबूत होंगे और करीबी ताउन को फ़रोग मिलेगा। पाकिस्तान अपने शराकतदारों के साथ कसीरुल जहद ताउन को फ़रोग देना चाहता है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि मुल्की मईशत की पायदार तरक्की में डिजिटल मालियाती निज़ाम के क़याम और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अमल में शफ़ाफियत को कलीदी हैसियत हासिल है। जिद्दत और कारोबार से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब में सदर मुमलिकत ने कहा कि हमारे पास वो सलाहियतें और वसाइल मौजूद हैं जिनको बरूएकार लाते हुए हम अपने नौजवानों को तरक्की के सफ़र के लिए तैयार कर सकते हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान में तरक्की देर से आई है लेकिन इसमें बहुत तेजी आएगी। 2-3 काम पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है। एक तो तालीम के अंदर तालीम को आम कर रही है। दूसरा काम ये कर रही है कि जो इस दायरे में पीछे रह गए थे इस काम में उनको स्किल्स देना चाहती है। हुकूमत पाकिस्तान स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स बना रही है, IT जोन्स बनाए जा रहे हैं। उनके अंदर हम एनकरेज कर रहे हैं लोगों को कि इन्वेस्टमेंट हो। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, पाकिस्तान का गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का कामयाब तजुर्बा। DGISPR बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान ने मकामी तैयार करता गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का कामयाब तजुर्बा किया है। ये रॉकेट सिस्टम रिवायती हथियार ले जाने का हामिल है। इस हरबी निज़ाम से पाक फौज की दुश्मन के इलाके में गहराई तक कामयाबी से हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान और चीन का अफगानिस्तान में पुरअमन सियासी तस्फिये की हिमायत का इयादा। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ और चीनी हम मनसब के दरमियान वीडियो कॉल पर इलाकाई अमन सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती सूरत हाल पर मिलकर काम करने के अज़म का इयादा किया। इलामिया के मुताबिक पाक चीन दो तरफा मुफादात को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इलामिया में मजीद कहा गया है कि अफगान सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानिब तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद मामूलात ज़िंदगी बड़ी हद तक बहाल हो चुके हैं। मुल्क में मजीद खाना जंगी नहीं चाहते। काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगान सरजमीन किसी सूरत अपने पड़ोसियों के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। तफसील यासिर हुसैन से।
افغانستان میں حالات میں واضح بہتری آنے کے بعد طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اہم ترین نیوز کانفرنس میں نئی صورتحال پر پالیسی گائیڈ لائنز کو واضح کیا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے خارجہ امور، داخلی صورتحال، انسانی حقوق، خواتین کی خود مختاری اور قومی سلامتی جیسے اہم امور پر اظہار خیال کیا۔ عالمی میڈیا نے نیوز کانفرنس براہ راست نشر کی۔ پی ٹی وی نیوز کے نمائندے فہد جاوید نے کابل سے نیوز کانفرنس کور کی۔ ترجمان طالبان نے کہا کہ حالیہ دنوں میں کابل سمیت ملک کے کسی بھی حصے سے تشدد کا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا، جو انتہائی خوش آئند ہے۔ ترجمان طالبان نے کہا کہ ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ مکمل سیکیورٹی بحال ہونے پر ملازمت پیشہ خواتین اپنے اداروں میں جانے کے لیے آزاد ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ تمام غیر ملکی سفارتکاروں اور سفارت خانوں کی مکمل سیکیورٹی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ توقع ہے کہ وہ افغانستان میں اپنی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا چاہتے ہیں کہ حکومت سازی کا عمل جلد مکمل ہو۔ افغانستان کی نئی قومی فوج کی تشکیل کا عمل بھی جاری ہے۔ تقریباً 10 ورځې کېږي چې زموږ هیواد کې بشپړ امن تامین شوی د کابل په شمول هیڅ ځای کې هم موږ د مرګ او زوبلې او د تلفاتو راپور نه لرو۔ سیاسي برخه کې هم زموږ مشران په کار بوخت دي، بېلابېلې مشورې جمع شوي دي، له بېلابېلو اړخونو سره مشورې شوي دي د آینده په اړه، د راتلونکي نظام په اړه، نو انشاءالله هغه مشورې چې نتیجې ته ورسېږي زر داسې موږ به شاهد د دې اوسېږو چې یو نظام اعلانېږي۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ امریکہ اور دیگر غیر ملکی افواج وعدے کے مطابق مقررہ وقت پر افغانستان سے انخلا مکمل کریں۔ افغانستان میں سی آئی اے کے نمائندے سے سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے اور غیر ملکی افواج کی انخلا پر بات ہوئی ہے۔ کابل ایئرپورٹ کا راستہ عام شہریوں کے لیے بند ہے، صرف غیر ملکی ایئرپورٹ جا سکتے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ پرانی دشمنیوں کو ختم کر کے مل کر افغانستان کے لیے کام کرنا ہے۔ افغان سرزمین کسی صورت دہشت گرد مقاصد اور پڑوسی ملکوں کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اسلامي امارت دا دریځ دی چې د افغانستان له خاورې نه هیچا ته هم اجازه نه ورکوو چې نورو هیوادونو ته څوک مشکل پېښي، تعدید پېښي، او د دې معنی دا ده چې دلته به داسې ستونزې موږ نه پرېږدو، چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ له خاورې نه د بل هیواد په ضد باندې استفاده وکړي، د نړۍ هر هیواد کې وي که زموږ ګاونډي هیوادونه وي۔ ترجمان طالبان نے کہا کہ افغان عوام ملک سے باہر جانے کی بجائے افغانستان میں ہی رہیں اور ملک کی ترقی میں ساتھ دیں۔ امید ہے کہ پنج شیر کا معاملہ بھی بات چیت سے حل کر لیا جائے گا اور جنگ کی نوبت نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں میڈیا مکمل طور پر آزاد ہے، سرکاری ٹی وی اور ریڈیو کی نشریات مسلسل چل رہی ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ملک اور عوام کی خدمت کرنے والے ادارے فعال کر رہے ہیں، تمام بینک، ہسپتال اور تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ناظرین، افغانستان میں صورتحال تیزی سے بہتری کی جانب گامزن ہے اور طویل عرصے کے بعد ملک میں امن دیکھنے میں آ رہا ہے اور کاروباری مراکز کے بعد بینک اور تعلیمی ادارے بھی کھل گئے ہیں، جبکہ گزشتہ چند روز کے دوران افغان کرنسی میں بھی غیر معمولی بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ طالبان قیادت کے انتباہ کے بعد غیر ملکیوں کے انخلا میں تیزی آ گئی ہے، تاہم G7 تنظیم میں شامل 7 بڑی طاقتیں آج اپنے ورچوئل اجلاس میں انخلا کی ڈیڈ لائن میں توسیع کے لیے طالبان سے چند روز مزید مانگنے کی کوشش کریں گی۔ امریکہ نے 31 اگست تک انخلا مکمل کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے، تاہم جرمنی، برطانیہ اور فرانس کی کوشش ہے کہ چند روز مزید مل جائیں۔ امریکی CIA کے سربراہ ولیم برنر نے کابل میں طالبان کے نائب امیر ملا عبدالغنی برادر سے ملاقات کی اور فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق غیر ملکی فوجیوں کے انخلا کے بعد امریکہ اور طالبان کے درمیان اعلیٰ ترین سطح کا یہ پہلا رابطہ تھا، تاہم فارقین نے ابھی اس ملاقات کی تصدیق نہیں کی ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان کا کہنا ہے کہ ہم سیاسی اور سفارتی دونوں ذرائع سے روزانہ طالبان کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں۔ افغانستان میں نئی حکومت کا ڈھانچہ ابھی سامنے نہیں آیا، تاہم عارضی طور پر کچھ تقرریاں کی گئی ہیں۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق طالبان قیادت نے گل آغا کو ملک کا عبوری وزیر خزانہ، سردار ابراہیم کو وزیر داخلہ، ثناء اللہ کو وزیر تعلیم، عبد الباقی کو اعلیٰ تعلیم کا وزیر، نجیب اللہ کو انٹیلیجنس چیف، حاجی محمد ادریس کو مرکزی بینک کا گورنر، ملا شیرین کو کابل کا گورنر اور حمد اللہ نعمانی کو کابل کا میئر مقرر کیا ہے۔ انخلا کی ڈیڈ لائن قریب ہے اور روزانہ درجنوں پروازیں ہزاروں افراد کو بیرون ملک منتقل کر رہی ہیں، لیکن غیر ملکی فوجیوں کے ان کے مقامی ایجنٹس، ترجمانوں اور ان کے اہل خانہ کے علاوہ بہت سے لوگ ایسے بھی کابل کے ہوائی اڈے پر موجود ہیں جو طویل عرصے سے بہتر مستقبل کے لیے یورپ یا امریکہ جانے کے چکر میں موقع کی تلاش میں تھے۔ طالبان ترجمان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ بعض اسلام دشمن طاقتیں میڈیا کے ذریعے لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر کے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔
پاک افغان مشترکہ بزنس فورم کے وفد نے کابل میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان سے ملاقات کی ہے، اور ملاقات کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ان دنوں ممالک کے تاجروں کو درپیش مشکلات سے متعلق اس ملاقات میں آگاہ کیا گیا۔ خان جان الکھوزے کی سربراہی میں وفد نے بتایا کہ پاک افغان بارڈر کی بندش سے تاجروں کو مسائل کا سامنا ہے۔ منصور احمد خان نے کہا کہ پاکستان نئی افغان حکومت کے ساتھ تجارت سمیت تمام شعبوں میں تعاون کرے گی اور باہمی تجارت کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ ناظرین، افغانستان میں طالبان کی جانب سے مرکزی بینک میں گورنر کی تعیناتی کے بعد ملک میں مالیاتی سرگرمیاں بحال ہو گئی ہیں۔ افغانستان میں بینکوں کی فعالیت کی اس وقت کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں کابل میں موجود ہمارے نمائندہ خصوصی فہد جاوید سے۔ جی فہد، بتائیے گا کہ کابل میں کیا صورتحال ہے اس وقت، کیا وہاں کے لوگ بینکوں سے رقوم آسانی کے ساتھ نکلوا سک رہے ہیں؟ کاروباری سرگرمیاں شروع ہونے کے بعد کابل کے اندر جو ہے مالیاتی ادارے بھی آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گئے۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اولین بینک ہے کابل کا، جس کے اندر اے ٹی ایم سے لوگوں نے جو ہے پیسے نکلوانے شروع کیے ہیں۔ یہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو بینک سے پیسے نکلوا رہی ہے۔ کوشش کرتے ہیں لوگوں سے بات کریں کہ ان کو کیا مالی مشکلات ہیں اور پیسوں کے حصول کے لیے کیا مسئلے ہیں۔ بات کرتے ہیں کسی سے۔ سلام آقا۔ سلام علیکم. چه مشکلات داری؟ بانک کار میکنه اینجا؟ تا بال کار نمیکنه. دیگه منتظر هستیم گفته که همه یمی بانک‌ها منتظر بانک مرکزی هستن. دیگه فقط همی بانک قرضای کوچک که در تایمانی قرار داره، یه فقط همی کار کرده بخش اتیم فعال کرده که مردم‌ها یک مقدار ناچیز خود از بانک گرفته بتونن. یه هم بسیار کار سهولت، بسیار سهولت خوبی هستن. شما هم میخواید اونجا برای پول بگیری اومدید؟ برای پول آمدیم بله. چقدر مشکلات دارید؟ مشکلات از ما کارت ما مشکل پیدا کرده، دیگه مشکل نداریم. لوگوں کا کہنا ہے کہ کل تک آپ یہاں سے 15,000 نکال سکتے تھے، لیکن اب 10,000 اخوانی نکال سکتے ہیں پیسے۔ بینک بند تھے، بینک بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، اب وہ یہاں پر کھڑے ہیں اے ٹی ایم کی لائنوں میں کہ پیسے نکال سکیں۔ ناظرین، پی ٹی وی نیوز کی ٹیم کابل میں شہریوں کو درپیش مسائل پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ افغان دارالحکومت میں لوگوں کو اشیاء خود و نوش کی فراہمی میں آسانی ہے یا انہیں کسی قسم کی قلت کا سامنا ہے، اس حوالے سے بھی ہمارے نمائندے خصوصی فہد جاوید نے لوگوں سے بات کی ہے، آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ سبزی کی دکان پہ سبزی بھی موجود ہے، صاف ستھرے ٹماٹر ہیں اور دیگر سبزیاں بھی ہیں، موسمی تمام سبزیاں، کریلے موجود ہیں، بھنڈی ہے اور مرچیں ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں آقا این ٹماٹر در افغانستان کاشت میشن؟ ببخشید وطنی است. چند کیلو چند است؟ کیلوی 30 روپیه. 30 روپیه. هم دیگر سبزی ها رو ریت هم بگو چند است؟ کلش مناسب است. چوراک 60 روپیه، چوراک 100 روپیه. ماشاءاللہ ان کا پھل بہت اچھا ہے، افغانستان کے اندر بہت اچھا پھل ہوتا ہے۔ یہ افغانی سیب جو مجھے دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ اتنا بڑا سیب ہے۔ ان کیلو چند است؟ این کیلوی 100 روپیه. 100 روپے افغانی، 100 روپے کلو یہ سیب ہے۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے ہمیں خوش آمدید کہا ہے، بڑے خوبصورت سی مسکراہٹ دی ہے۔ ان سے پوچھتے اینجا چیزا چجور هستن؟ ارزون هستن؟ حالا خلت که پیدا نشده؟ والا وطن ما آرام نمیمونه مردم. فروت خیلی خوب داری، چجور هست؟ هر چیز داریم، هر چیز داریم. دشمنای افغانستان نمیمونن که آرام باشه افغانستان. بڑی پیاری بات کی ہے بھائی نے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کے جو دشمن ہیں وہ نہیں چاہتے افغانستان کے اندر امن ہو، لیکن افغانستان کے اندر ہر چیز موجود ہے، اچھا پھل پیدا ہوتا ہے، اچھی سبزیاں پیدا ہوتی ہیں اور یہاں پر لوگ بہت ملنسار ہیں۔ یہ ایک مشہور کابل کا اخوانی نان جس کو کہیں یا پیزا کہیں، یہ پیزا ہے جو یہ لوگ یہ بنا رہے ہیں، یہ اخوانی اس کو پیزا کہتے ہیں۔ دارین چیزا را میذاری؟ کچالو گندنه میکس است. دیگر چی است؟ دیگه مواد بلانی است دیگه. یہ بتا رہے تھے کہ اس کے اندر آلو ہیں اور باقی چیزیں ہیں۔ یہ جو بھائی ہیں یہ بنا رہے ہیں، بڑا مزے کا ٹیسٹ ہے جی اس اخوانی پیزے کا، اور اس کو کھا کر واقعی مزہ آ رہا ہے۔ جیسے کہ ان کی محبت کا، ان کے خلوص کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس ذائقہ جو ہے وہ اس پیزے کے اندر آ رہا ہے۔ ناظرین، ترقی یافتہ ملکوں میں سہانے مستقبل کی لالچ اور غیر ملکی میڈیا کے منفی پروپیگنڈے سے متاثرہ ہزاروں افغانیوں نے ملک سے بھاگنے کی کوشش کی۔ کچھ تو منزل پر پہنچ گئے، لیکن کچھ کی حالت آسمان سے گرا کھجور پر اٹکا جیسی ہو گئی۔ جی ناظرین، یہ وہ بدنصیب لوگ تھے جو افغانستان سے بھارت پہنچے۔ بغل میں چھری، منہ میں رام رام،
ये है जुनूनी हिंदू रियासत भारत की दहशतगर्द क़यादत का हथकंडा कि वो धोखे में आकर भारत पहुंचने वाले अफगानियों को सहारा देने के बजाय उन्हें एक ऐसे माजूर की तरह इस्तेमाल कर रही है जिसे रेड़े पर डालकर भीख मांगी जा सके। मोदी हुकूमत ने मुहाजिरीन के नाम पर कशकोल उठा लिया है और आलमी बिरादरी से उनके नाम पर भीख मांगना शुरू कर दी है। दुनिया भर में भारतीय सिफारती मिशन डॉलर ईंटने के लिए दर दर मारे फिर रहे हैं। भारत पहुंचकर तज़लील का शिकार होने वाले अफगानियों ने दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि हम यहाँ आकर फंस गए हैं। भारत आना इंतहाई अहमकाना फैसला था जो उन्हें बहुत महंगा पड़ा है। काबुल में रॉ के एजेंडों ने सुहाने सपने दिखाए और यकीन दिलाया था कि उन्हें रोजगार और शहरियत मिलेगी, लेकिन उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। भारतीय मीडिया के मुताबिक हुकूमत सिर्फ उन्हीं अफगानों को पनाह देगी जो भारत के खुफिया इदारों के लिए काम करते थे। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। पाकिस्तान इस वक्त कोरोना की चौथी लहर की लपेट में है। हर नई लहर पिछली से ज्यादा शदीद साबित हो रही है। बार बार के लॉकडाउन, रोज रोज की माली मुश्किलात, ये सिलसिला कब और कैसे खत्म होगा? इन सब सवालों का जवाब है वैक्सीन। सिर्फ वैक्सीन के जरिए हम इस सिलसिले को खत्म कर सकते हैं, जिंदगी को मामूल पर वापस ला सकते हैं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपके इलाके में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन आए तो उनसे वैक्सीन लगवाएं या करीबी वैक्सीनेशन सेंटर तशरीफ लाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। पाकिस्तान इस वक्त कोरोना की चौथी लहर की लपेट में है। हर नई लहर पिछली से ज्यादा शदीद साबित हो रही है। बार बार के लॉकडाउन, रोज रोज की माली मुश्किलात, ये सिलसिला कब और कैसे खत्म होगा? इन सब सवालों का जवाब है वैक्सीन। सिर्फ वैक्सीन के जरिए हम इस सिलसिले को खत्म कर सकते हैं, जिंदगी को मामूल पर वापस ला सकते हैं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपके इलाके में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन आए तो उनसे वैक्सीन लगवाएं या करीबी वैक्सीनेशन सेंटर तशरीफ लाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, अब बात करते हैं पाक अफगान तोरखम सरहद की। अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाले बीमार अफराद को इंसानी हमदर्दी के तहत सहूलत फराहम की जा रही है, जबकि अफगान शहरियों को तोरखम सरहद से वापस जाने दिया जा रहा है। अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों को भी तुरखम सरहद से मुल्क आने दिया जा रहा है। इसके अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती सरगर्मियां बहाल हैं और रोजाना 700 से ज्यादा गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी है। पाक अफगान बॉर्डर चमन बाब दोस्ती आज भी कानूनी दस्तावेजात रखने वाले अफराद के लिए पैदल आमदोरफ्त और तजारत के लिए खुला रहा है। पाक अफगान बॉर्डर चमन बाब दोस्ती पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और इस दौरान तजारती मकासद के लिए कंटेनर्स भी पाक अफगान सरहद से आर पार आ रहे हैं। पाक अफगान सरहद पर मुहाजिरीन की आमदोरफ्त को सख्ती से रोका जा रहा है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सिर्फ मरीजों को पाकिस्तान जाने की इजाज़त दी जा रही है। सहाफ़ती तंजीमों ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर चलने वाले इश्तिहारात को मुस्तरद करते हुए एक तरफा मीडिया मुहिम के खिलाफ मुसाबकती कमीशन से रुजू करने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़र्रुख हबीब से मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमों फोर्थ पिलर इंटरनेशनल, PFUJ प्रोफेशनल और यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अहदेदारान ने मुलाकात की। सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारान ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी मुजव्वज़ा बिल को मुस्तरद नहीं किया गया। अहदेदारान ने कहा कि माज़ी की हुकूमतों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मीडिया वर्कर्स के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कदम उठाया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि जदीद मीडिया का सबसे बड़ा चैलेंज जाली बयानिए को असल बयानिए से अलग करना है।
मौजूदा तमाम कवानीन डिजिटल मीडिया के इनकलाब से पहले बनाए गए। उन्होंने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में मीडिया मालिकान के एतराज़ात से सहाफ़ती तंजीमों को आगाह किया। वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा कि मीडिया इदारों को 70 करोड़ रुपए की अदायगियाँ की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद वर्कर्स को तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल की फेक न्यूज़ और सहाफ़ियों के हुकूक से मुताल्लिक शिकों पर कोई समझौता नहीं होगा, तहम बाकी शिकों पर तजावीज़ का खैर मकदम किया जाएगा। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने यूनिवर्सिटीज़ पर जोर दिया है कि वो मुल्क में मेयार तालीम के फ़रोग़ के लिए ऑनलाइन तालीम में इजाफ़ा करें और तहक़ीक़ और जिद्दत पर तवज्जो दें। बदलती हुई दुनिया के चैलेंजेस से निमटने के लिए तलबा को तैयार करने के लिए जामियात के विजन को तश्कील देने की ज़रूरत है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार ऐवान सदर में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस इस्लामाबाद के बारे में ब्रीफिंग इजलास की सदारत करते हुए किया। डायरेक्टर नवल मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जाफर ने मुल्क में तालीम के फ़रोग़ में यूनिवर्सिटी के किरदार के बारे में प्रेजेंटेशन दी। सदर ममलकत ने इस बात पर जोर दिया कि 21वीं सदी के चैलेंजेस से निमटने के लिए आला तालीमी इदारों को फ़िक्री तौर पर आला ग्रेजुएट्स पैदा करने की ज़रूरत है। मुल्क की माशी तरक्की के लिए नौजवानों को IT के शोबे में हुनर सिखाने की ज़रूरत है। सदर ममलकत ने मुल्क में तालीम के फ़रोग़ के लिए नमल के किरदार को सराहा। नाज़रीन, सदर ममलकत ने सरकारी इमलाक खात्मे तजावुज़ात ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी दे दी है। सदर ने आइन के आर्टिकल 89 के तहत ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसका मकसद सरकारी इमलाक पर गैर कानूनी कब्जे और तजावुज़ात का खात्मा है। गैर कानूनी कब्जा करने वाले अफराद को कैद और जुर्माने की सज़ा भी सुनाई जा सकती है और तजावुज़ात के खात्मे के लिए सदर ममलकत चीफ जस्टिस की मशावरत से एपलेट ट्रिब्यूनल तश्कील देंगे। ऑर्डिनेंस के तहत सरकारी इमलाक पर कब्जे और तजावुज़ात के खात्मे से मुतालिक मामलात के लिए एपलेट ट्रिब्यूनल ही मिजाज इदारा होगा। सदर ममलकत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 भी जारी किया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी तरमीमी एक्ट 2021 के सेक्शन 14 में तरमीम की गई है। नाज़रीन, लाहौर शहर में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए 4 अरब 23 करोड़ रुपए की लागत से शाहकाम चौक फ्लाई ओवर पर काम का आगाज़ कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गुज़श्ता 3 साल में लाहौर के लिए मुतअद्दिद मंसूबे शुरू किए हैं। मंसूबे की मज़ीद तफसील बता रही हैं लाहौर से सिदरा आसिम। शाहकाम चौक बेशतर नई आबादियों और टाउन्स में आमदरफ्त के लिए मरकजी हैसियत रखता है। केनाल और डिफेंस रोड से मोटरवे और मुल्तान रोड के लिए भी ट्रैफिक कई घंटे ब्लॉक रहती थी। इस सूरत हाल से निपटने के लिए ये मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस अहम मंसूबे की तकमील से ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी के साथ साथ वक्त और ईंधन की बचत होगी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मेगा प्रोजेक्ट शाहकाम चौक फ्लाई ओवर की तामीर का बाज़ाब्ता संगे बुनियाद रख दिया है। संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब ने कहा कि हमारी तरजीहात में पंजाब का हर शहर, हर गांव और हर कस्बे को यकसा तौर पर तरक्की के मौके फराहम करना है। हमने न सिर्फ शाहकाम चौक पर 606 मीटर तवील 2 तरफा फ्लाई ओवर बना रहे हैं, बल्कि लेबर कॉलोनी से शाहकाम चौक तक 6 किलोमीटर तवील डिफेंस रोड को 2 रैया बनाया जाएगा। लाहौर के तरक्याती मंसूबे जिनमें लाल शाहबाज कलंदर और ठोकर न्याज़ पर दाखिली दरवाज़ा, जना अस्पताल में ब्रिज, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स और लाहौर में जनूबी एशिया का सबसे बड़ा मियावाकी जंगल लगाया गया है। वजीर आला ने कहा कि लाहौर की तामीर तरक्की का रोड मैप मुतय्यन करने के लिए LDA की ज़ेरे निगरानी स्टेक होल्डर्स की मशावरत से मास्टर प्लान 2050 मुरतब किया जा रहा है। शाहकाम चौक फ्लाई ओवर मंसूबे के तकमील होने से ट्रैफिक के मसाइल में काफ़ी हद तक कमी आएगी। सिदरा आसिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। रुख करेंगे मकबूजा वादी का। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी है और रियासती दहशत गर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान सोपुर कस्बे में मज़ीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया गया, जिससे गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शहीद होने वालों की तादाद बढ़कर 5 हो गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों ने इन नौजवानों को पीट शहर के इलाके में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। गुज़श्ता रात श्रीनगर में भी 2 नौजवानों को शहीद किया गया था। फैशिस्ट मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 के बाद मकबूजा इलाके में बेगुनाह लोगों को फर्जी मुकाबलों में शहीद करने का सिलसिला तेज़ कर दिया है। पुलिस ने सीनियर ऑफिसर
विजय कुमार के एतराफ़ के बाद मकबूजा कश्मीर में रवां साल में 100 से ज़ायद नौजवानों को शहीद किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि भारत की तरफ से जुल्म और बर्बरियत की ताज़ा लहर से इसका यह दावा बेनकाब हो गया है कि इलाके में सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासती अवाम भारतीय तसल्लुत से मुकम्मल आज़ादी के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हुर्रियत रहनुमा बिलाल अहमद सिद्दीकी ने कहा कि जिस तरह भारत आज़ादी पसंद क़यादत को बदनाम कर रहा है, इससे ज़ाहिर होता है कि वो तनाज़ा कश्मीर को हल नहीं करना चाहता। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने श्रीनगर में अपने इजलास के दौरान एक करारदाद मंजूर की, जिसमें दफ़ा 370, दफ़ा 35A और जम्मू कश्मीर की मुकम्मल रियासती हैसियत की बहाली के मुतालबे का इयादा किया। इजलास के बाद अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने मीडिया को बताया कि ग्रुप ने अफसोस का इजहार किया है कि रियासती अवाम की तजलील की जा रही है और ख़बरदार किया है कि इससे खुद भारत के लिए भी ख़तरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से मुल्क को महफूज बनाने के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने साफ और सरसब्ज पाकिस्तान मंसूबे का आगाज़ किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक मंसूबे के जरिए करोड़ों दरख्त लगाए गए हैं, जिससे माहौलियाती आलूदगी का खात्मा हुआ है और माहौल में बेहतरी पैदा हुई है। तफसील जानेंगे मज़हर अब्बास से। बदकिस्मती से माजी की हुकूमतों ने माहौलियाती बेहतरी के लिए कोई इकदाम नहीं किए और किसी भी हुक्मरान ने मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने पर कोई तवज्जो न दी, जिससे माहौलियाती ख़तरात में इजाफा होता चला गया और पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में 5वें नंबर पर आ गया। मुल्क में जंगलात का महज 2.2% रकबा रह गया और ख़तरनाक हद तक जंगलात की कटाई के बायस पानी की ज़ेर ज़मीन शरह बहुत कम हो गई। हत्ता कि 2025 तक पाकिस्तान में पानी की किल्लत की बातें होने लगी। सैलाब के बायस फसलें तबाह हुई और माशी नुकसान हुआ और दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा होता रहा। I would make sure that we preserve this God-given beauty of our country. जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन चैलेंजेस से निपटने के लिए खुसूसी इक़दामात का हुक्म दिया। क्लीन ग्रीन पाकिस्तान का आगाज किया गया। 10 बिलियन ट्री सुनाबी मंसूबा शुरू किया गया। खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होने वाले मंसूबे का मकसद मौसमियाती तब्दीलियों से निपटना है। दरख्त माहौल के लिए निज़ाम तनफ़ुस का काम देते हैं। क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत पौधे लगाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के हवाले से इक़दामात, थर्मल पावर की बजाय हाइड्रो पावर हाउसेज बनाना, टाउन और हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से पॉलिसियाँ, ग्रीन ग्रोथ एजेंडा मंसूबा, ईंटों के भट्टों का इलेक्ट्रिक भट्टों में तब्दीली का मंसूबा, ये सब ऐसे इक़दामात हैं जिसके बायस पाकिस्तान में आने वाली मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने में मदद मिलेगी। मौजूदा हुकूमत में मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने आलमी यौम माहौलियात की मेज़बानी की। आलमी रहनुमाओं ने माहौलियाती तब्दीली के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की काविशों की तारीफ की और पाकिस्तान की तरफ से मौसमियाती तब्दीली के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात को सराहा है। क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मौजूदा हुकूमत का तवील मुद्दती मंसूबा है। इससे शायद सियासी फ़ायदा न हो, लेकिन इससे आने वाली नस्लें मुस्तफ़ीद होंगी। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। बात करेंगे कोरोना की, तो मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार है। मजीद 91 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। इस तरह अमवात की मजमूई तादाद 25,000 से तजावुज़ कर चुकी है। वफाकी वज़ीर असद उमर और मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि 31 अगस्त के बाद स्कूलों में आने वाले बच्चों के ट्रांसपोर्ट अमले के लिए वैक्सीनेशन लाजमी होगी। 30 सितंबर से हवाई जहाज़, जबकि 15 अक्टूबर तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वालों के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी होगी। तफसील बता रही हैं हुमा इकबाल। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि तालीमी इदारों में 79% असातिज़ा और अमले की वैक्सीनेशन हो चुकी है। NCOC में मीडिया ब्रीफिंग में नई पाबंदियों का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि वालिदैन तलबा की वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं, क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद मुकम्मल वैक्सीनेशन के बगैर तालीमी इदारों में दाखिला बंद होगा। उन्होंने बताया कि मोटरवेज और हाईवेज पर भी 15 सितंबर से पहली डोज और 15 अक्टूबर के बाद दोनों डोज की पाबंदी होगी। सहूलत मौजूद है, हुकूमत हर एक तक पैगाम दे चुकी है। हज़ारों वैक्सीनेशन सेंटर खुले हुए हैं, मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे हैं, मुफ्त में वैक्सीनेशन लगवाई जा रही हैं। इसलिए ये आपको इजाज़त नहीं मिल सकती कि आप अपने सेहत के साथ साथ दूसरों की सेहत के लिए ख़तरा बने। 31 अगस्त के बाद कोई भी स्कूल के अंदर या स्कूल के बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काम पर हाजिर नहीं हो सकेगा अगर उसने कम से कम एक डोज वैक्सीन की ना लगवाई भी हो। अगर फुली वैक्सीनेटेड नहीं तो आप ना डोमेस्टिक ट्रैवल कर सकेंगे, ना
انٹرنیشنل ٹریول کر سکیں گے. ہوٹلز، گیسٹ ہاؤس، یہ تمام ٹھہرنے کی جگہیں ہیں، یہاں پر بھی بڑی تعداد کے اندر لوگ آتے ہیں. وہی 31 اگست اور 30 ستمبر کی تاریخ ان پر بھی لاگو ہوگی. معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ آئندہ ماہ کی 1 تاریخ سے 17 سال سے اوپر نوجوانوں کے لیے ویکسینیشن شروع کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کمزور دفاعی نظام کے حامل نوجوانوں کے لیے مخصوص ویکسینیشن شروع کر رہے ہیں. 17 سال سے لے کر 18 سال کی عمر کی جو کیٹیگری ہے اس کو 1 ستمبر سے کھولا جائے گا. اس کے بعد 15 سال سے لے کر 16 اور 16 سے 17 سال والے بچے جو ہیں ان کی کیٹیگری جو ہے اس کی بھی ویکسینیشن کا آغاز ہوگا. ملک سے باہر جانے کے لیے کچھ مخصوص ممالک میں کچھ مخصوص ویکسینز کی ضرورت ہے. یہ میڈیکل کی بیسس پہ نہیں ہے، اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ ان کو ٹریول کرنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے ایک ویکسین کی ضرورت ہے. جس جگہ وہ جا رہے ہیں اور جس ملک میں اس ویکسین کی ضرورت ہے اس کا ویزا ان کے پاس ہو اور یہ ویکسین پیمنٹ پہ ہوگی. انہوں نے کہا کہ حکومت کے لیے ہر پاکستانی کی صحت اہم ہے. عوام بندشوں سے نجات کے لیے جلد سے جلد ویکسینیشن مکمل کروائیں. ہما اقبال، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وہ جو کہتے تھے کہ ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی، آج ان کے دور کے ہر پروجیکٹ میں کرپشن نظر آ رہی ہے، مگر اداروں پر تنقید کرنے والے قانون کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میٹرو اسکینڈل میں شہباز شریف نیب راولپنڈی میں نہیں پہنچے. لیگی رہنما عطا تارٹ نے شہباز شریف کی جانب سے جواب داخل کرایا. شہباز شریف کو احسن اقبال کے بھائی مصطفیٰ کمال کو ٹھیکہ دینے پر طلب کیا گیا تھا. RDA کے فائل ریکارڈ کے مطابق میٹرو منصوبے کا ٹھیکہ شہباز شریف کے کہنے پر دیا گیا تھا. کانٹریکٹ دیتے وقت پیپرا رولز کی بھی خلاف ورزی کی گئی. ناظرین، نون لیگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کے جنرل سیکرٹری مفتاح اسماعیل نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. مسلم لیگ نون کراچی کے جنرل سیکرٹری ناصر الدین محمود نے ان کے استعفے کی تصدیق کر دی ہے. ان کا کہنا ہے کہ مفتاح اسماعیل نے استعفیٰ گزشتہ ماہ کراچی میں پارٹی کے دفتر میں ہنگامہ آرائی کرنے والے کارکنوں کے خلاف تادیبی کارروائی نہ کیے جانے کی بنیاد پر دیا. کارکنوں کی جانب سے مفتاح اسماعیل پر کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کے دوران ٹکٹ کے فروخت کا الزام لگایا گیا تھا. اپنے استعفے میں مفتاح اسماعیل نے لکھا ہے کہ میرے خلاف ہونے والی ہنگامہ آرائی اور لفظ گفتگو سوشل میڈیا پر ڈالی گئی. کامیاب جوان پروگرام کے ذریعے نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے اور قرض حاصل کرنے والے نوجوانوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فروخ حبیب نے اس حوالے سے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ کامیاب جوان پروگرام نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کا سب سے بڑا حکومتی منصوبہ بن چکا ہے اور 18,000 سے زائد نوجوانوں میں سے اب تک 22 ارب روپے سے زائد تقسیم کیے جا چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومتی سطح پر منصوبے کی شفافیت اور میرٹ کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے اور ملک بھر میں کامیاب جوان پروگرام کے ذریعے قرضوں کی تقسیم کا عمل تیز کر دیا گیا ہے اور نجی بینکوں کو قرض کی تقسیم میں حائل رکاوٹیں فوری ختم کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے. گلگت بلتستان کے آئینی پیکج پر اجلاس ہوا ہے اور گلگت بلتستان کو عارضی صوبے کا درجہ دینے کے حوالے سے تفصیلی قانونی اور آئینی امور پر بحث ہوئی. بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا کہ پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں پہلی بار گلگت بلتستان کو عارضی صوبے کا درجہ دینے کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. آئینی پیکج اقوام متحدہ کی قراردادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تشکیل دیا گیا ہے. بہت جلد تجاویز اور مسودے وزیر اعظم کو ارسال کر دیے جائیں گے. السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی. ناظرین، آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. تاہم بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے.